Huh. Any difficulty so far? Ask your difficulties first, and we'll discuss the numericals. Then we'll see your assignment. All right. Chalo. I think these all have been done. This I'll discuss this one also. इसका आंसर आ गया था क्वेश्चन नंबर 10th. If you put the values properly, are you there? Can you hear me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. इसमें if we put the 2 pi r by t, it will be giving us the average speed. है ना? Average speed will be given by this relation, and it will come 3.07 kilometer per second or 3070 meter per second. All right, so this is just calculation part. You can do it easily. There is no problem, है ना? No problem in this. चलो. No, sir. What about this? इसका क्या आंसर आया? What is the answer of this? You didn't solve it. You are not doing the homework. You have to do all the homeworks. Shivani, Yes, sir. Krishan, Shubhan, sorry, and Siddhant. होमवर्क करना है Yes. ना जो तुम्हें होमवर्क मिलते हैं. असाइनमेंट कहाँ तक पहुंचा? जो सर ने असाइनमेंट दिया था फिजिक्स का, उसमें so many questions are there. How many of you could complete? सर ने बोला आज डिस्कस करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए. कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? पूरा सॉल्व करना है उसको. If you sit down for 1 hour, you can at least solve more than 50-60 questions या 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है वो. 2-3 आवर्स में पूरा सॉल्व कर सकते हैं. है असाइनमेंट आपके पास? I am going to ask you the question from that today. पहले ये कंप्लीट कर लें. इसका आंसर बताओ. Do it now and tell me. Quickly solve करो इसको. चलो. And write your answer in chat box or you tell me oral now itself. चलो सॉल्व करो. कृष्ण क्या आंसर आ रहा है? सभी लोग करेंगे. All of Yes, you sir, will do it. Shubhan, what is your answer? Sir, I'm solving one.
Sir, of first part 2 seconds. It will go up to the height of 20 meter from the top of the building, and from the ground it will be 45 meter. ठीक है? Clear? How long will it be before the ball hits the ground? Second part. ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट इट विल गो टू सम हाईएस्ट पॉइंट. T1 निकाल देंगे. हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना लगेगा? G10 है. 2 सेकंड लगेगा हाईएस्ट पॉइंट में, और अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगी ग्राउंड में. Yes, sir, 2. यहाँ से चेंज करके वो नीचे आएगी. तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? How much time it will take to come down to the ground? Which formula should? चलो ट्राई करो, सॉल्व करके बताओ. ग्राउंड में नीचे आने में टाइम T2 लगेगा. How much time will it take to come to ground? अभी ऊपर से नीचे आ रही, 0 स्पीड से स्टार्ट करेगी. टोटल डिस्टेंस कितनी है ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट से? कितनी है? 45 मीटर. 45. If we take downward direction positive, so we can keep it 45. तो G भी फिर हम 10 लेंगे. डाउनवर्ड डायरेक्शन ही हम प्लस ले रहे हैं. इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस है तो 45 के पहले भी माइनस और G भी माइनस. इफ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन हम प्लस लेंगे, 45 भी प्लस, G भी प्लस. कितना आ रहा है? T2 सॉल्व करके बताओ. How much is the T2 coming? Sir, 3 seconds. हाँ, it will be √9. Yes, sir. 3 सेकंड आएगा. Therefore total time? Sir, 5 seconds. 2 plus 3 is equal to 5 seconds. ठीक है. Now I want you to solve it with the single equation. ये दो पार्ट में नहीं करना है, सिंगल पार्ट में करना है. सिंगल इक्वेशन से करना है इसको. This is the starting point. This is the initial point. Here is the final point. Ground is the final. सिंगल इक्वेशन से करना है. Which equation should we use it? Which equation should we use it? टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन है? V is equal to U plus AT. Then S is equal to UT plus half AT square. दोनों में से एक यूज कर सकते हैं. Second equation, can we use it? Yes, we can use it. Second equation. Second equation में S is equal to UT plus half AT square. तो S कितना ले? S is what? So Displacement or distance? Sir, 25 होगा. Displacement 25. Okay, सॉल्व करके देखो. सिंगल इक्वेशन से कितना आ रहा है?
आंसर तो सेम आना चाहिए ना, बट कैन यू पुट द वैल्यूज प्रॉपरली, दैट इज द क्वेश्चन. कैन यू पुट द वैल्यूज प्रॉपरली, दैट इज द मेन क्वेश्चन. देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, बताओ. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं तो ऑल द वेक्टर, ऑल द क्वांटिटी which are having the direction should be negative. तो u तो हमने ऊपर फेंका, we have thrown it up with what speed? u कितना था? How much it was? 20. Yes, sir. Thrown up, यहाँ से ऊपर फेंका था, प्लस 20. टाइम निकालना है, प्लस हाफ. a कितना? डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव 10 t स्क्वायर. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना? 25 प्लस प्लस की माइनस, 25 प्लस की माइनस. So plus. डाउनवर्ड plus. डायरेक्शन क्या है? हाउ डू वी गिव द डिस्प्लेसमेंट? हाउ डू वी गिव द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते? एरो ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल ये है और फाइनल नीचे ग्राउंड में. इनिशियल इज हियर, फाइनल इज हियर. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाउ मच डाउनवर्ड? इनिशियल से फाइनल पोजीशन में कितना? -25. गॉट इट? दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू. ये तुम्हें अभी, तुम लोगों को ये पॉइंट अभी नहीं बताए जाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस न्यू पॉइंट फॉर यू. If we put all the signs properly, we will get the right answer from single equation also. We don't have to do it in two parts. यहाँ पे mistake करती है. As you are telling 25, everybody says 25. But since we are taking the downward direction negative, acceleration हम लोगों ने नीचे लिया, minus लिया, displacement भी तो ऊपर से नीचे है. It has to be negative. As I have been telling कि displacement negative vector quantity है. It will have the direction. Body starts from top of the tower and comes down to the ground. तो माइनस होगा उसका एरो नीचे की तरफ. Now you solve it, you'll get the right answer. इसको सॉल्व करके देखो, आ रहा है? फाइव से डिवाइड कर देते हैं. फैक्टर्स कर लेते हैं इसके. t minus 5 plus 1 t minus 5 is equal to 0. ठीक है, तो t minus 5 is equal to 0 और t plus 1 is equal to 0. तो t is equal to plus 5 और minus 1. plus 5 वाला आंसर सही रहेगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा. दिस इज द राइट आंसर which we already done it in the previous method. Clear? So this is new for you. Is it clear to everybody? How did we solve it? This is the second Yes, method. sir. Sometimes you may come across this, but Yes. better you learn these all methods. You will have the advantage of solving difficult question also, or in lesser time also. All right. Anybody has any problem? Just unmute and ask. Siddhant, ठीक है? Yes, sir. Siddhant, it's okay? Clear to you? Yes, sir. Shubhan, Yes, sir. Shivani and Yes, sir. Krishan. Yes, sir. तो ये Yes, थोड़ा सा sir. नया पार्ट है, तुमने ऐसा पहले किया नहीं होगा, बट आई एम टीचिंग यू. ये सब तुम्हें आगे करने पड़ेंगे व्हेन यू लर्न मोर एंड मोर. ठीक है? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? इसका क्या आंसर आया? सर इसका आ गया Sir, था. we had done this. क्लास में हो गया था? 5 आ गया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, मैंने क्या बताया? जितना वो whatever it will go up in the last 1 second,
ये लास्ट 1 सेकेंड है, सेम इट विल कम डाउन इन द फर्स्ट 1 सेकेंड. That is what I told you yesterday. Same it will come down in the first 1 second. Down आने में it will come with the 0 speed. अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर हम प्लस लेते, चलो यू मे बी थिंकिंग सर अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर लेते, प्लस लेंगे तब आंसर आएगा क्या? इफ यू टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस, डू वी हैव द सेम आंसर? आंसर इज यस. देखो क्या चेंज होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, बट यू विल बी माइनस बिकॉज वी आर थ्रोइंग इट अप. यहां से देखो हमने अप थ्रो किया है, तो यू विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस, तो ऑटोमेटिकली सेम इक्वेशन विल कम. साइंस आर इंटरचेंजिंग लेफ्ट एंड राइट, सेम इक्वेशन आ जाएगी बाद में. तो यू कैन टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस एंड सॉल्व, यू विल गेट द 5 मीटर. देन आल्सो यू टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस एज वी डिड, देन आल्सो सेम. ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. प्लस लेंगे तो क्या चेंज होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन ये नीचे वाला प्लस, एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड, वो भी प्लस. ऊपर वाली डायरेक्शन बॉल थ्रोन अप, दैट विल बी माइनस. दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन. इफ यू कैन अंडरस्टैंड के क्वेश्चन भी कर सकते हो, जेई एंड नीट के क्वेश्चन भी कर सकते हो, इफ यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स ओनली. एनी क्वेश्चन यू कैन डू इट. आई एम टेलिंग यू जेई का और नीट का एंड बोर्ड अपना 9th का एंड 11th का. Nothing is going to change. Everywhere it will be taught to you like this. Whether you go to any institute, Nagpur, Kota, anywhere, same it is going to. If you understand these 2 points, you can solve any question of this chapter. Particularly when the body is moving in under the effect of gravity. All right, clear? आगे देखें. इसको सॉल्व कर रहे थे, अभी नीचे आ रहे, तो नीचे की डायरेक्शन प्लस ले लो, अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लस आ जाएगा. तो हाफ 10 into 1 स्क्वायर, तो 5 मीटर. और ये वाला व्हाट अबाउट दिस, ये किसका सॉल्व हुआ? दीज आर द क्वेश्चंस जो है तुम्हें 12th तक काम आने वाले. ये जो क्वेश्चन है ना 12th जेई 11th के तुम्हारा सीबीएसई, देन जेई एंड नीट में ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं भी पूछ सकते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर. And many students of 12th cannot do it at this moment, even if they have been taught. वो भूल जाते कैसे करेंगे, तो नहीं कर सकते. अभी भी फिर से दोबारा दे दें अगर नीट के स्टूडेंट को और जेई के स्टूडेंट को, they will be just taking a lot of time to think, do this question. If you can learn it now, you will have the many advantages. आया किसी का आंसर? ये बोलो. देखो टाइम टू स्टॉप निकाल लो कितना है. v is equal to u plus 80, तो 0, 45 minus 10 into t. t is equal to 4.5 second. 4.5 second में the particle will come to halt. देखो ग्राउंड है यहाँ कहीं पे सपोज, ठीक है, 4.5 सेकंड में उसके टर्न होकर नीचे आएगी वो. लास्ट सेकंड ये रहेगा, हाफ सेकंड दिस साइड, हाफ सेकंड दिस साइड. फिफ्थ से 4.5 सेकंड मतलब लास्ट 1 सेकंड, 3.5 to 4.5 सेकंड. अच्छा एक मिनट, सॉरी होल्ड ऑन. लास्ट 1 सेकंड जो है, एक मिनट जस्ट करेक्शन है, जस्ट होल्ड ऑन. लास्ट 1 सेकंड है ना, तो 3.5 to 4.5 आएगा. ठीक, तो ball is thrown vertically upward with the speed 45 meter per second. Find the distance and displacement in last 1 second of its journey.
लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। तो इसमें भी तो कुछ चेंज तो होनी ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू गिव यू दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। आर यू गेटिंग मी? पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? बोलो। आर यू देयर? तुम लोग हो वहाँ? सुन रहे हो मुझे? Yes, Yes, sir. sir. किशान, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? शिवानी, ऑल ऑफ यू अनम्यूट एंड टेल मी। इसमें कोई Yes, इस क्वेश्चन sir. में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो। नो और यस? शिवानी, No. हमने क्या किया इसमें? लास्ट 1 सेकेंड जो होगा अपवर्ड जर्नी का, वो फर्स्ट 1 सेकेंड होगा डाउनवर्ड जर्नी का। तो सेम सिमेट्रिक सिचुएशन में सेम डिस्टेंस कवर होती है ना। जो लास्ट 1 सेकेंड में जितना जाएगा उतना फर्स्ट 1 सेकेंड में नीचे आएगा। तो फर्स्ट 1 सेकेंड का निकाल दिया हमने 5 मीटर, उतने लास्ट 1 सेकेंड में आएगा। चलो इसको दूसरे मेथड से करके देखें 5 मीटर कैसे आ रहा है। ओके चलो, कितनी टाइम टू स्टॉप कितना है? v इज इक्वल टू u प्लस at। टाइम टू स्टॉप इज 4 सेकेंड में वो रुकेगा जाके। तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस इज लास्ट 1 सेकेंड में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड। will be distance in 4 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। टोटल जर्नी 4 सेकेंड की है, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा? 3 to 4 सेकेंड वाला होगा। तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी गई और 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस हुई? तो यही तो होगा ना। ये 3 सेकेंड तक हो गया, समझ लो दिस इज अप टू 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड है। तो 4 सेकेंड का निकाल के 3 सेकेंड का निकाल के माइनस कर देंगे। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। गेटिंग और नॉट? डिस्टेंस इन 4 सेकेंड कितना होगा? Yes, sir. ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना था अपना? 40। 40 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 4 सेकेंड की जर्नी। और थर्ड सेकेंड की जर्नी देखो, 40 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर। सॉल्व करके दिखाओ कितना आ रहा है। हमने 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लिया, 3 सेकेंड का निकाल के माइनस कर दिया। देखो कितना आ रहा है। Sir, 5 ही है। 5 आ रहा है पक्का? चलो फिर समझ में आ गया। फाइव आ रहा है। दोनों मेथड समझ में आ गया अभी तुम्हें? एटलीस्ट सेकंड मेथड यू कुड हैव डन ऑल ऑफ यू। पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? ऑल आर गोइंग टू डू वेल, बट तुम तो कहा सॉल्व करके सॉल्व ही नहीं कर रहे। घर में क्या करते हो अभी तुम लोग? ये 5 आ जाएगा, ठीक है। आजकल तो टाइम मिलता होगा ना बहुत? नहीं मिलता टाइम तुम लोगों को? अभी बहुत टाइम मिलना चाहिए तुम लोगों को। 9th 10th में, 11th 12th में जब जाते हैं ना, तो कोर्स इज नियरली 3 times लार्जर। तो तुम्हें जो है 1/3 टाइम ही मिलेगा जब 12th में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे। ठीक है, बोलो इसमें कुछ पूछना है जस्ट आप। अभी इसको करके बताओ, चलो सॉल्व करके बताओ क्विकली।
देखें किसका आंसर पहले आता है। आ गया। सर सेम आया। कैसे किया? सर हाउ डिड यू डू? आपने ऐसे बताया, पहले 4 सेकंड की जर्नी निकाली, फिर 4.5 सेकंड 4.5 सेकंड की जर्नी निकाली और 3.5 की दोनों ट्रैक कर दिया। ओके। तो 45 into 4.5 minus 5 into 4.5 squared, which is 101.25, and उस 4.5 को 3.5 से रिप्लेस कर दिया तो उसका आंसर आ रहा है 96.25। तो दोनों को सबट्रैक्ट किया तो 5 निकल। ओके, व्हाट अबाउट अदर? ओके ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? all of you are getting same answer. The answer will be 5 meter only. No change in this. इससे क्या प्रूव हुआ? Whether you throw it with 40 या you throw it with 45, you throw it with 55, you throw it with any speed, in last 1 second it is going to cover the distance of 5 meter. Yes sir. पहले 40 से किया, पहले पार्ट 40 वाला किया, इससे पहले क्वेश्चन उसमें 5 आया, अभी 45 से 60 आंसर सेम आएगा। तो दिस इज द एक यूजफुल इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए। लास्ट 1 सेकंड ऑफ जर्नी में इट कवर्स ओनली 5 मीटर प्रोवाइडेड एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। मून पे फेंकेंगे तो इफ यू थ्रो इट एट मून, वहां पे जी कितना होता है? 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। तो वहां पे 5 मीटर नहीं आएगा। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द अर्थ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ। मून पे 1/6 हो जाएगा इसका, 1/6, 5/6। आ गया सबका? Yes sir. तो एनी डिफिकल्टी सो फार? नो सर। देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमको पूछूं सेम क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड in 5th second of its journey? What is the question? What is the displacement? इसका second part. What is the distance and displacement covered in 5th second of its journey?
तो फिफ्थ सेकंड, अच्छा पहला सेकंड कौन सा होता है? विच वन इज द फर्स्ट सेकंड? 0 से 1 सेकंड वाला Yes. इज द फर्स्ट सेकंड। 1 to 2 सेकंड वाला सेकंड सेकंड होगा। 2 to 3 सेकंड वाला थर्ड होगा। 3 to 4 वाला होगा फोर्थ। तो फिफ्थ कौन सा होगा? 4 to 5 वाला। ये तो लेकिन 4.5 तक ही जा रही, 4.5 सेकंड। तो हाफ सेकंड इधर का और हाफ सेकंड इधर का, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जीरो हो जाएंगे। सॉरी कम अगेन। सर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके, फिफ्थ सेकंड में। और डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस, तो यू आर राइट, तुमने सही आंसर दिया डिस्प्लेस, बिकॉज हाफ सेकंड में जितना ऊपर जाएगी नेक्स्ट हाफ सेकंड में नीचे आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? ओके, यहाँ पे मैंने दोनों डिस्प्लेसमेंट लिख दिया क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है डिस्टेंस। इनफैक्ट क्या होता है ना, डिस्प्लेस एक और इक्वेशन होती है जो कि हमें वन पर्टिकुलर सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट देती है। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट का तुमने आंसर दे दिया, डिस्टेंस का तुम्हें देना है। ठीक है, तो दिस इज योर वन ऑफ द होमवर्क्स। डिस्टेंस फिफ्थ सेकंड में इसमें निकालना है, और तुम लोग नोट करके रखो। जस्ट हैव द प्रॉपर नोट्स and sir will check you one day. I will also check. If you are not able to write, tell me, I will wait for you. ठीक है, तो दिस डिस्टेंस वाला पार्ट पेंडिंग है तुम्हारे लिए। ठीक है, नोट डाउन। देखो, जितना लास्ट हाफ सेकंड में ऊपर जाती है उतना फर्स्ट हाफ सेकंड में नीचे आएगी। सपोज यू थ्रो द बॉल, जैसे हमने देखा ना यहाँ, जितना लास्ट 1 सेकंड में ऊपर जाएगी उतने फर्स्ट 1 सेकंड में नीचे आएगी। जितना लास्ट 2 सेकंड में ऊपर आएगी उतने 2 सेकंड नीचे आएगी। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। Do you know this? If you throw the ball upward, if it takes 5 seconds to go to the highest point, then it will come back in 5 seconds to the point of projection. Symmetric condition होती है। ठीक, इसका ग्राफ किसी ने ड्रॉ किया इसका? Will it be like this or what? ऐसा आएगा कुछ क्या? बोलो, ये सही है क्या? इसमें कोई मिस्टेक क्या बताओ? Does this have any mistake? Yes, there is a mistake in this. When we throw the ball, it will have the more speed. और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो इट विल डिक्रीज। यहाँ तो इंक्रीज हो रही है, तो therefore it is wrong. रॉन्ग है कि नहीं? सपोज हमने यहाँ से फेंका, इट इज गोइंग अप टू हियर, यहाँ पे मोर स्पीड होगी। सपोज जैसे 40 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर 30,
20 ऐसे 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट में। तो टाइम के साथ इट इज डिक्रीजिंग, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। इट विल स्टार्ट विद द मोर वैल्यू एंड देन डिक्रीज, ऐसा कुछ। आफ्टर सम टाइम इट बिकम 0, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी तो 0 हो जाएगी। आफ्टर सर्टेन टाइम इट हैज कम टू 0। व्हाट अबाउट स्पीड? सेम ग्राफ स्पीड का भी, ठीक है। अभी बॉल नीचे आएगी यहाँ से, इट इज कमिंग डाउन, नीचे आएगी कि नहीं, वहीं रुक जाएगी? इट विल कम डाउन, नीचे आएगी। यस सर। उसके बाद हाँ, तो फिर ग्राफ कैसे चेंज होगा? हाउ द ग्राफ विल चेंज? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे चेंज होगा? सर फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी सर वापस थोड़ी बढ़ेगी, सर वापस बढ़ जाएगी वेलोसिटी। यस सर, इंक्रीज होगी लाइक दिस, सही है। व्हाट अबाउट सॉरी व्हाट अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड भी बढ़ेगी उसकी? यस सर। But both cannot be same. So one of them is wrong, because speed तो scalar quantity, speed में direction होती है, speed is always positive, है ना? What about velocity? Velocity is the vector quantity, it has the direction. While going up, it has the positive direction. While coming down, it will have negative direction. It should have negative value. When it comes down, velocity should be negative. So this is wrong. It should be negative. Like this. Now it's okay. Now it's okay. Negative velocity. How many of you think it is okay? सिद्धांत बताओ, ठीक है अभी नेगेटिव वेलोसिटी सही है? सर हाँ सर नहीं सर, क्योंकि टाइम डिक्रीज नहीं होगा। टाइम डिक्रीज नहीं Yes, होगा, sir. गुड। इसलिए इट विल नॉट कम बैक, इट विल गो फॉरवर्ड, इट विल कंटिन्यू टू गो फॉरवर्ड लाइक दिस, ठीक है। नाउ इट्स ओके। टाइम विल कंटिन्यू टू मूव अहेड। टाइम जो है देखो यहाँ पे सपोज 0 था, इट हैज some in say 5 seconds, 10 seconds, 15, 20 like this. Time has to move ahead, it cannot be going back. Yes, so इसलिए it will continue to, graph will be continue to move forward in negative direction, will not come back to towards origin, towards 0 नहीं आएगा। टाइम will not become 0। अगर तुमने सपोज ऐसे ड्रॉ कर दिया, टाइम तो 0 हो गया, 0 से फिर वापस 0 आ गए, velocity negative है, but time has become 0. Time will not be 0. Now it's all right.